Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 15 of the chapter 4 motion in a plane of class 11. In this part, I am going to discuss oblique projectile motion, its equation of trajectory and its velocity at any point of the trajectory. First of all, oblique projectile motion. तिरछी प्रक्षेप्य गति हिंदी में जब किसी बॉडी को हॉरिजेंटल से कुछ झुकाव कोण पर कुछ एंगल पर तिरछे ढंग से ऑब्लिकली ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा वह पिंड ग्रेविटी गुरुत्व के प्रभाव में कर्वपात वक्र पथ पर गतिशील हो जाती है और कुछ समय के बाद क्षैतिज के दूसरे बिंदु पर जाकर वापस लौट आती है। तो उस फेंके गए प्रक्षेप्य को पिंड को प्रक्षेप्य कहा जाता है तथा जिस वक्र पथ पर उस पिंड या प्रक्षेप्य की गति होती है उसे ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। इफ ए बॉडी इज थ्रोन from a point on the horizontal, that is point of projection, inclined at angle, some angle from the horizontal obliquely, so that its motion is influenced by gravity and it performs its motion on a curved path, and after some time it returns back to the horizontal or ground at the another point. The body thrown is called projectile and the curved path followed by the projectile under the action of gravity is called projectile motion, and the curved path which the projectile follows is called trajectory. Now write down this definition. If a body is thrown obliquely, obliquely का अर्थ तिरछा ढंग से, obliquely from any point, from a point, any point of the horizontal, that point is point of projection. Any point that is point of projection, point of projection from any point that is point of projection of the horizontal or ground, horizontal surface or ground of the horizontal or ground, so that its motion is influenced by gravity. अर्थ के ग्रेविटी का इफेक्ट उस फेंके गए थ्रो किए गए बॉडी पर एक्ट करेगा, काम करेगा और बॉडी कर्व पाथ पर मोशन करेगा, सो दैट इट्स मोशन इज इन्फ्लुएंस्ड और गवर्न्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, गवर्न्ड बाय द ग्रेविटी, and the body performs its motion, performs its motion on a curved path, its motion on a curved path, and then returns back to the ground or the horizontal, returns back
to another point of the horizontal, returns back to another point of the horizontal or ground. It is called, the motion of the body is said to be projectile motion. It is called projectile motion, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि बॉडी को यहाँ तिरछे ढंग से ऊपर की ओर फेंका गया है. बॉडी इज थ्रोन ऑब्लिकली, थ्रोन अप ऊपर की ओर फेंका गया, लेकिन तिरछे ढंग से, ऑब्लिकली फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल, मीन्स मेकिंग सम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल. ऑब्लिकली का मतलब ये हो गया कि तिरछा है तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल फॉर्म करेगा. इट इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. And the body thrown is called projectile or oblique projectile, and that body is called projectile, which is oblique projectile motion, is called projectile, and its motion is called oblique projectile motion. The curve path which the projectile follows under gravity is called its trajectory. The curve path and motion of the projectile is in a plane, because motion of a body on the curve path, on a curve path, is the example of motion in a plane or two-dimensional motion. The curve path followed by the projectile is called trajectory. By the projectile is called its trajectory. Now, some examples of oblique projectile motion are motion of a bullet fired from a gun, motion of a golf ball hit by a golf stick, motion of a cricket ball hit with a cricket bat, a javelin thrown by a player or athlete, etc. Now, equation of trajectory of the oblique projectile motion. जब कोई प्रोजेक्टाइल कर्व पाथ को फॉलो करता है तो जिस कर्व पाथ पर उसका मोशन होता है, ये कर्व पाथ है, तो जिस कर्व पाथ पर उसका मोशन होता है उस कर्व पाथ को, उस प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी कहा जाता है. तो यहाँ कर्व पाथ है, इस कर्व पाथ पर बॉडी को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ से थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टल की किसी पॉइंट ओ से ओ ए डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड यू के साथ, और चूँकि एक्स एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन थीटा है, इसलिए इसका स्पीड का, इसके वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, तो इसके स्पीड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग यू कॉस थीटा होगा, और यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होता है वह किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट होता है. पूरे कर्व पाथ के, पूरे ट्रेजेक्ट्री के किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा रिमेंस कांस्टेंट, जबकि उसका वर्टिकल कंपोनेंट, उसका जो वर्टिकल मोशन होता है प्रोजेक्टाइल का, वह अफेक्टेड होता है ग्रेविटी के द्वारा, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज करता है टाइम के साथ, लेकिन यू कॉस थीटा रिमेंस कांस्टेंट. केवल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो होगा वह टू डायमेंशनल मोशन में एक्स वाई प्लेन में वह चेंज करेगा. जैसे मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट जैसे हुआ, जब मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल पहुंच जाएगा, अटेंड कर लेगा, तो वहाँ उसका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा. लेकिन वहाँ पर भी जो वी एक्स होगा यू कॉस थीटा वह कांस्टेंट होगा मैक्सिमम हाइट पर भी. तो कर्व पाथ के ट्रेजेक्ट्री के किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू, इनिशियल वेलोसिटी यू का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा. किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वह इनिशियल स्पीड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा उसके इक्वल होगा कर्व पाथ के किसी भी पॉइंट पर. केवल वर्टिकल कंपोनेंट उसका वेलोसिटी का चेंज करेगा.
तो अब किसी प्रोजेक्टाइल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल या ग्राउंड के किसी पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया गया है ओ ए डायरेक्शन में, इनिशियल स्पीड यू से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। इसलिए इसके स्पीड का इनिशियल स्पीड यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा। और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में दो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन और वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन, दो इंडिपेंडेंट मोशन है प्रोजेक्टाइल का, और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता है, वह यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन जैसा स्थिति है, सरल रेखीय गति जैसा मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसलिए एक्सेलेरेशन जीरो होता है, एक्सेलेरेशन का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि स्पीड जो है यू कॉस थीटा हमेशा कांस्टेंट होता है throughout the horizontal component of the velocity, initial velocity that is u cos theta remains constant throughout the motion of the projectile at its any point of the trajectory। तो इसलिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी में इंक्रीज जीरो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, दैट इज वेलोसिटी में चेंज जीरो है, देयरफॉर एक्सेलेरेशन इज जीरो। लेकिन वाई डायरेक्शन में जो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग जो मोशन होता है, तो वह मोशन अफेक्टेड होता है ग्रेविटी के द्वारा, इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए लेकिन ग्रेविटी के द्वारा इफेक्ट होगा, लेकिन वर्टिकल जो डायरेक्शन में मोशन होता है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट इनिशियल स्पीड का यू साइन थीटा, लेकिन अपवर्ड मोशन में भी जो एक्सेलेरेशन होता है वह कांस्टेंट होता है, एंड दैट कांस्टेंट एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी से डिनोट किया जाता है, विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल जी। तो पार्टिकल किसी समय फेंका गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल के वो पॉइंट से, तो इसलिए इनिशियल ओ ए डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड यू से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इस स्पीड का, इनिशियल स्पीड का यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। और मान लिया कि टी टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल डी पर पहुंच गया, तो यहाँ जहाँ उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो यहाँ एक्स जो है ओ एन डिस्टेंस होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी, while dn is equal to y, जो vertical distance covered by the projectile is dn is equal to y, और this is the vertical distance covered by the projectile at after time t when it is projected from point O। स्मॉल y dn is equal to स्मॉल y है, जो प्रक्षेप्य द्वारा प्रोजेक्टाइल द्वारा तय की गई उदक दूरी है t समय के बाद फेंके जाने वो पॉइंट से फेंका गया है, क्षैतिज के वो बिंदु से, क्षैतिज से थीटा झुकाव कोण पर, क्षैतिज या जमीन से थीटा झुकाव कोण पर फेंका गया है ओ ए दिशा में ऊपर की ओर यू वेग से, यू प्रारंभिक चाल से। इसलिए इसके वेग का मान जो है चाल होता है, तो इसलिए इसका एक्स दिशा में डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा और वाई के अलॉन्ग यू साइन थीटा। और टी टाइम के बाद पार्टिकल का पोजीशन कर्व पाथ के डी पॉइंट पर है, तो डी पॉइंट से डी एन परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिए, तो डी एन जो वर्टिकल डिस्टेंस हुआ वाई एक्सिस के पैरेलल वह स्मॉल वाई हो गया, और ओ एन जो डिस्टेंस हो गया वहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इसका डी पॉइंट के प्रोजेक्शन का, डी पॉइंट का प्रोजेक्शन एन है, तो ओ एन डिस्टेंस एक्स हो गया। एक्स इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी, वाइल वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी। तो नाउ horizontal distance covered by the projectile in after time t is we can obtain it by x is equal to ut, that is u cos theta into t, और एक्सेलेरेशन तो जीरो है, हाफ प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर यूजिंग द इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन along x axis। तो लेट नाउ राइट डाउन लेट, तो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट कितना है इनिशियल वेलोसिटी का यू कॉस यू साइन थीटा, बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है वे डायरेक्शन में, और बॉडी जो है टी टाइम के बाद डी पर पहुंचा, उसके बाद फाइनली जाकर हॉरिजॉन्टल के बी पॉइंट पर लैंड कर जाएगा। तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑब्टेन करना है, और हम ऑब्टेन करेंगे कि टी टाइम में वो कितना वर्टिकल डिस्टेंस वाई कवर किया, और फिर उसके पहले टी टाइम में एक्स डिस्टेंस कितना कवर किया। तो पोजीशन पार्टिकल का है, प्रोजेक्टाइल का है किसी टाइम टी पर, कहाँ है डी पॉइंट पर है। लेट यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, क्योंकि वाई डायरेक्शन के साथ कोई इंक्लिनेशन नहीं है, इसलिए कंपोनेंट यू का इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग यू साइन थीटा होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यू कॉस थीटा, लेकिन यू कॉस थीटा तो कांस्टेंट है पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए प्रोजेक्टाइल का। Let t be at any instant, let at any instant the projectile or the body projected, body thrown is at point D of the trajectory,
let at any instant t the projectile motion है, projectile reaches to point D of the trajectory, D of the trajectory. So using the equation of rectilinear motion, s is equal to ut plus half at square for the horizontal projectile motion along x-axis. Now distance covered by the projectile after time t, horizontal distance. Now using the equation of motion, horizontal distance covered by the projectile आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद ओ पॉइंट से इसको थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टल के, जब ओ पॉइंट से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ बिंदु पर, प्रक्षेपण बिंदु प्रक्षेप्य का प्रोजेक्टाइल का ओ है, जहाँ से इसे ओ डायरेक्शन में यू स्पीड से फेंका गया है थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, इसलिए यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। क्योंकि वाई एक्सिस से कोई इंक्लिनेशन नहीं है, इसलिए जिस डायरेक्शन में इंक्लिनेशन नहीं होता है तो उधर कंपोनेंट यू साइन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई एंगल ऑफ साइन of the inclination which the projectile makes with the horizontal. The horizontal distance covered by the projectile after time t from the point of projection O, is given by x is equal to distance x है u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का u cos थीटा कांस्टेंट होगा पूरे x एक्सिस के लॉन्ग इंटायर मोशन के लिए, u cos थीटा पूरे इंटायर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट होता है, u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ x तो जीरो हो गया, x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है, u cos थीटा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos थीटा वो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वह कांस्टेंट होता है, इसलिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेलेरेशन। द हाफ इंटू ए इज एक्स इक्वल टू जीरो इंटू टी स्क्वायर, दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो है, यहाँ एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग जो एक्सेलेरेशन है प्रोजेक्टाइल का वह जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो, सिंस एक्स इक्वल टू जीरो। Therefore, we will left with x is equal to u cos theta into t only, x is equal to u cos theta multiplied by t, और इससे t का वैल्यू आ जाएगा t is equal to x अपॉन u cos theta। और उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल अपवर्ड मोशन का केस देखेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस किया, इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट के डी के कॉरस्पॉन्डिंग, जब प्रोजेक्टाइल उसे फेंके जाने के बाद पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टी समय के बाद डी पर पहुंचा तो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया कितना टी टाइम में, वाई और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स, तो एक्स तो हम मालूम कर लिए और वाई भी निकाल लेंगे उसी ढंग से, वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा काम करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वाई डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया जाए तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करता है हमेशा, इसलिए वह निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमने सपोज कर रहे हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जाए, जिससे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पॉजिटिव लिया जाएगा। Now we can obtain t from this equation, x is equal to u cos theta into t. T is the time taken by the projectile to reach the point D of the trajectory, that is curve path from the point of projection O. The projectile is thrown from the point of projection O, and after throwing the projectile along O direction, after time t
t, the projectile reaches to point D of the trajectory. So t is equal to x upon u cos theta. This is equation number 1. Now using the equation of motion, vertical upward motion under gravity, y is equal to ut minus half gt square, we can find the vertical distance covered by the projectile after time t when it is projected from the point of projection O. t टाइम के बाद वर्टिकल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है वह डिस्टेंस dn है जो कि y है, जब प्रोजेक्टाइल कर्व पाथ के डी पॉइंट पर पहुंचा है। तो x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया उस सिचुएशन में, x, चूँकि डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट xy लिया गया है, इसलिए x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस t टाइम के बाद स्मॉल x होगा और y एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस स्मॉल y होगा। तो स्मॉल y के लिए अब चूँकि स्मॉल y जो है स्मॉल y ऑब्टेन करने के लिए वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल अपवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t, तो वर्टिकल मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है, बल्कि वह मोशन है इन्फ्लुएंस्ड है ग्रेविटी के द्वारा। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी माने ग्रेविटी एक्ट करेगा अपवर्ड मोशन के लिए प्रोजेक्टाइल का, और बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन g होगा। उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, y एक्सिस के लॉन्ग मोशन में एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल का कांस्टेंट होगा, जबकि x एक्सिस के लॉन्ग मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, मीन्स कांस्टेंट होगा। तो नाउ vertical upward distance covered by the projectile after time t is y is equal to vertical upward distance covered by the projectile along y axis. Now for motion along the vertical upward motion, vertical motion along y axis. Now for the motion along y axis, that is upward direction. Now for the motion along y axis, that is vertical upward direction, we have distance covered by the projectile, vertical upward distance covered by the projectile after time t is y is equal to, प्रक्षेप्य द्वारा प्रोजेक्टाइल द्वारा t समय में, t टाइम के बाद d पर पहुंचा, तो t समय में जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया गया वह क्या है, nd डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल से, y इक्वल टू u के जगह u साइन थीटा, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जो कंपोनेंट होगा u साइन थीटा इंटू t, और अपवर्ड डायरेक्शन को हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो उस सिचुएशन में प्लस हाफ ay, इसको हम कर सकते हैं प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया है, तो इसलिए ay इक्वल टू क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन हो चाहे अपवर्ड मोशन हो, उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड के लॉन्ग काम वर्क करेगा। तो नाउ y इक्वल टू, और y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी। अब प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है ऊपर की ओर, अगर नीचे की ओर मोशन रहता, हालांकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हमेशा नीचे की ओर वर्क करेगा, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन को मान लिया गया है नेगेटिव और पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका गया है, तो उस सिचुएशन में यहाँ 1/2 ay इक्वल टू माइनस जी, तो दैट इज g, यहाँ माइनस आगे हो गया gt स्क्वायर अपवर्ड वर्टिकल मोशन के लिए, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया गया है, और अपवर्ड मोशन में के लॉन्ग, अपवर्ड डायरेक्शन में के लॉन्ग मोशन होगा तो वो चीज़ स्पीड हो चाहे डिस्टेंस हो सभी निगेटिव हो जाएंगे उस सिचुएशन में। नाउ y इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, और जब अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g भी निगेटिव हो जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लें तो g हमेशा काम करता है नीचे की ओर, इसलिए यहाँ भी g निगेटिव होगा, तो माइनस हाफ gt स्क्वायर। और अब t का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और y इक्वल्स टू u साइन थीटा
into t is x upon u cos theta minus half g t is equal to x upon u cos theta। तो यहाँ पर अपवार्ड मोशन के लिए अपवार्ड डायरेक्शन में जो मोशन है, अपवार्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवार्ड मोशन है या डाउनवर्ड मोशन हो तो यूजुअली हम प्लस वाई एक्सिस को, अपवार्ड डायरेक्शन में जो एक्सिस होता है मोशन, उसको जनरली पॉजिटिव एक्सिस मान लिया जाता है। और तो डाउनवर्ड जो डायरेक्शन होता है उसके लॉन्ग जो मोशन होगा तो उसके लॉन्ग चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस हो तो वो भी निगेटिव होगा। तो कभी कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन को भी पॉजिटिव, सुविधा के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान लिया जाता है। तो उस सिचुएशन में अपवर्ड डायरेक्शन में सारी चीज़ें, वेलोसिटी हो चाहे डिस्टेंस हो, वर्टिकल, सब निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए सुविधा के लिए हमने सारा चीज़ ऊपर की ओर है तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जाए। वेलोसिटी, बॉल को फेंका भी गया है ऊपर की ओर थ्रो, तो बेटर होगा कि प्लस अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जाए। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अपवर्ड बॉल फेंका जाए चाहे डाउनवर्ड हो, हमेशा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड नीचे की ओर काम करता है, वेट करता है। तो नाउ टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 से इसमें, ये इट इज इक्वेशन नंबर 2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई इक्वल टू माइनस जे यहाँ, इसलिए कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव सपोज कर लिए। पहले सिचुएशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माने थे, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो चीज़ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा चाहे वेलोसिटी होगा, सारा चीज़ निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ ए वाई इक्वल टू माइनस जे है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, भले ही बॉडी को ऊपर फेंका जाए या नीचे फेंका जाए, लेकिन नीचे की ओर ड्रॉप किया जाए जी हमेशा, लेकिन नीचे की ओर जी हमेशा नीचे की ओर एक्ट करता है। ये उसे भी कैंसिल हो गया। नाउ साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, देयरफॉर वाई वी हैव वाई इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। और ये इक्वेशन पाराबोला का इक्वेशन जैसा है। दिस इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ पाराबोला एंड विच इज y इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ ए पाराबोला। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स यहाँ क्वाड्रेटिक है, एक्स का पावर 2 है, एक्स क्वाड्रेटिक है, जो कि पाराबोला के इक्वेशन को शो करता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री विच इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ ए पाराबोला। राइट डाउन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द, और इस फार्मूला पर भी प्रॉब्लम्स है, पार्टिकुलरली एनसीईआरटी टेक्स्ट में तो नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में इस पर प्रॉब्लम है। उस चैप्टर को भी मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसमें इस फार्मूला पर भी बेस्ट को प्रॉब्लम्स जो होगा उसको सॉल्व करूँगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। This is the equation of trajectory of the oblique projectile motion. Oblique projectile motion का ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हो गया। जिस कर्व पाथ पर, इस कर्व पाथ पर प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा उसको ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है ऑफ द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू, जैसा हमने कहा एक्स क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ ए पाराबोला। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज पाराबोलिक। जो शेप है ये कर्व, ये पाराबोला का शेप है, तो सो इट इज पाराबोलिक। एंड द अबव इक्वेशन 3 इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ ए पाराबोला। द अबव इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन 3 ये सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ parabola, similar to the equation of a parabola. पाराबोला का इक्वेशन जैसा है,
ये उससे सिमिलर है। y इक्वल टू बी एक्स, टेन थीटा की जगह हम b मान लें तो बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, जो कि पैराबोला का इक्वेशन है, इक्वेशन 4। और यहाँ अगर ये पैराबोला का फॉर्म में आ जाता है इक्वेशन 3, कब? वेयर इफ वेयर बी इक्वल टू टेन थीटा, वेयर टेकिंग टेन थीटा इक्वल टू बी एंड हाफ जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी। और ये दोनों जो है कांस्टेंट है। टेन थीटा जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है प्रोजेक्टाइल को कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लेस पर यहाँ प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है वो कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है। तो टेन थीटा की जगह भी और जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अगर एक्स रिप्लेस किया जाए तो ये इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, जो कि ट्रेजेक्ट्री थी पैराबोला का इक्वेशन है। देयरफॉर पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। इससे क्लियर हुआ कि देयरफॉर ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज गिवन बाई 3 एंड इट इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। अगर इस इक्वेशन में टेन थीटा की जगह हम बी पुट कर दें, स्मॉल बी, और जो रिमेनिंग टर्म है हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको सी अगर सपोज करें तो उस सिचुएशन में ये इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, जो कि पैराबोला का इक्वेशन है, जो कि x क्वाड्रेटिक है, x का पावर 2 है। इसलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा? इक्वेशन 4 से क्लियर है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। नाउ इन लास्ट आई एम गोइंग टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन एट एनी पॉइंट, से इट इज P और Q, कोई पॉइंट सपोज किया जा सकता है। Now in last, velocity of a projectile at any instant of the trajectory of the oblique projectile motion। किसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल का किसी पॉइंट सपोज करते हैं वो पॉइंट डी है, वहाँ पर वेलोसिटी भी है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी है। तो उस वेलोसिटी के लिए का वैल्यू ऑब्टेन करना है। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर डी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करना है। और चूँकि एक्स वाई प्लेन मोशन है तो भी पॉइंट डी पर जो वेलोसिटी है, सपोज करता है कि किसी प्रोजेक्टाइल को वो पॉइंट से थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टल से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर, और टी टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल डी पॉइंट पर पहुंच जाता है, जहां इसका वेलोसिटी सपोज करते हैं कि भी है। ये वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ भी स्पीड, इनिशियल स्पीड वेलोसिटी यू वेक्टर होगा, उसका कंपोनेंट वी एक्स वी वाई होगा। यहाँ पर यू का कंपोनेंट यू एक्स सी वाई होगा, और यू एक्स होगा यू कॉस थीटा, यू वाई एक्सिस के साथ कोई इंक्लिनेशन नहीं है तो इधर यू साइन थीटा हो जाएगा। तो यही ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट किया गया है। और किसी पॉइंट डी पर जब वो टी टाइम के बाद पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से थ्रो किए जाने के बाद टी टाइम के बाद डी पर पहुंचा, तो डी टाइम पर वेलोसिटी भी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। और डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, यहाँ एंगल वेलोसिटी टी टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल डी पॉइंट पर पहुंचा ट्रेजेक्ट्री के, तो यहाँ पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी एक्स है, वाई कंपोनेंट भी वाई है। क्योंकि एक्स वाई प्लेन मोशन हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक भी एक्स दूसरा भी वाई। तो अब वेलोसिटी का एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन कितना है बीटा, ये हमको एंगल भी निकालेंगे। फॉर्मूला टेंजेंट, एंगल का टेंजेंट tan बीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, जैसा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में भी मैंने ऑब्टेन किया था। तो यहाँ पर भी वैसा ही। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस से जो इंक्लिनेशन है, दोनों कैलकुलेट करना होगा। So now, since the projectile is thrown from the point of projection O of the horizontal or ground with initial velocity u vector, making angle theta with the horizontal, वही डायरेक्शन के लॉन्ग ये इसको थ्रो किया गया है। लेकिन उसके बाद पार्टिकल पर ग्रेविटी का इफेक्ट होगा और पार्टिकल का मोशन
कर्व पाथ पर होगा। जिस डायरेक्शन में फेंका गया वही डायरेक्शन के लॉन्ग वही लाइन ऑफ एक्शन नहीं हो पाएगा, बल्कि प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा झुक जाएगा अंदर की ओर, इसलिए कि ग्रेविटी का इफेक्ट इस पर एक्ट करेगा, काम करेगा, और पार्टिकल कर्व पाथ पर फॉलो करते हुए डी पॉइंट पहुंचा टी टाइम के बाद। उसके बाद मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा यहाँ पी पर, तो उसके बाद वापस लौट आएगा हॉरिजॉन्टल के दूसरे पॉइंट पर। यहाँ सपोज करते हैं वह पॉइंट है वही डायरेक्शन में फेंका गया है, बी है। तो यही कर्व पाथ पर जो मोशन है, ये कर्व पाथ पर जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है, इसी को ट्रैजेक्टरी कहेंगे। तो इसी के किसी पॉइंट पर सपोज करते हैं डी पॉइंट पर वेलोसिटी भी हमको सपोज किए हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। अब इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट वो पॉइंट पर वो हो जाएगा कितना, यू एक्स इजकल टू यू कॉस थीटा एंड यू वाई इजकल टू वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा। अब सपोज करते हैं कि आफ्टर टाइम टी प्रोजेक्टाइल रीचेस टू पॉइंट डी ऑफ द कर्व पाथ ट्रैजेक्टरी। लेट आफ्टर टाइम टी projectile reaches to point D of the trajectory, point D of the trajectory. Trajectory means curve path followed by the projectile under the action of gravity. So let v be the velocity of the particle of the projectile at point D. Let v be the velocity of the projectile at time t at point D, where it reaches point D after time t from the point of projection O. Let v be the velocity of the projectile at point D, at point D of the trajectory, D of the trajectory. अब वेलोसिटी पॉइंट डी पर जो वेलोसिटी सपोज किया गया v, उसका भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, vx और vy। तो vx कंपोनेंट के लिए लेट vx एंड vy आर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v एट पॉइंट डी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो अब vx के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम ऑब्टेन करेंगे। vx जो है vx मोशन प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल मोशन जो है कांस्टेंट होता है, तो उधर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और vy के लॉन्ग एक्सेलरेशन होगा, जो कि अगर y डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड काम करेगा, तो y इक्वल टू -g हो जाएगा। तो नाउ vx इज द नाउ फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट डी। देखिए एट पॉइंट डी वी हैव पॉइंट डी ऑफ द ट्रैजेक्टरी, वी हैव कंपोनेंट है वेलोसिटी का vx, x कंपोनेंट ऑफ vx इक्वल टू और vx इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए u इक्वल टू होता है vo x, t इक्वल टू 0 टाइम पर जो वेलोसिटी था यहाँ vo x है, जो कि क्या था, u था, और उसका कंपोनेंट हो गया x एक्सिस के लॉन्ग u cos थीटा, vo x प्लस x इंटू टी यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्सलेटेड मोशन v इक्वल टू u प्लस at। तो vo x इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, initial velocity of the projectile, that is velocity of the projectile when time t is equal to 0। यहाँ ओ से फेंका गया है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी हो गया vx, जो कि u है, और vox जो है उसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट हो जाएगा कितना, u तो वेलोसिटी है लेकिन x डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, और y के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा uy वो होगा u sin थीटा। तो इधर x एक्सिस के लोग कंपोनेंट लेंगे u cos थीटा, तो vox इक्वल टू u cos थीटा x कंपोनेंट हो गया प्लस x इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मोशन का केस है, u cos थीटा हमेशा थ्रू आउट ओ से बी तक कांस्टेंट होगा, दैट इज, और vx इक्वल टू क्या हो गया u cos थीटा, दैट इज vx इक्वल टू u cos थीटा, माने vx इक्वल टू u cos थीटा
इंटू एक्स तो जीरो हो गया यहाँ पर, एक्सलेशन इसके अलोंग जीरो हो गया, एक्स इजकल टू जीरो इंटू टी, दैट इज ओनली वी विल लेफ्ट विथ यू कॉस थीटा, वी एक्स इजकल टू यू कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ भी यू एक्स और यू वाई है, इस दोनों को मिलाकर 1 सपोज कर लेते हैं, ये 2 हो गया। तो ट्रैजेक्टरी के डी पॉइंट पर वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वी एक्स, वो हो गया कितना, यू कॉस थीटा। हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द इंटायर मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट होता है। तो ये वी इजकल टू वी एक्स इजकल टू यू कॉस थीटा ऑब्टेन हो गया यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। फर्स्ट इक्वेशन वी इजकल टू यू प्लस ए टी का यूज किया गया, लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल मोशन है कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ is uniform is a case of uniform motion, uniform rectilinear motion. Therefore, acceleration along x-axis of the projectile along x-axis is 0. Now we have to obtain the value of y component at point D, Vy. Now, using the equation of motion under gravity, equation of upward motion under the action of gravity, we have, तो ये along x एक्सिस हो गया, ये एट पॉइंट डी along x एक्सिस। अब y एक्सिस के along, now along y एक्सिस we have y axis, we have component of velocity along y is vy is equal to u voy, इसको लिखेंगे voy प्लस ay इंटू टी, और voy is equal to u sin थीटा प्लस ए वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर इस केस में निगेटिव। तो ए वाई इजकल टू माइनस जी, देयरफॉर माइनस जी टी। यहाँ इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और यहाँ लिख दें, यहाँ हम लिखें ए वाई इजकल टू माइनस जी, वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज ए वाई इजकल टू माइनस जी, ए वाई इजकल टू माइनस जी, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग always acting in vertical downward direction, while I have taken plus y axis upward direction along as the positive direction. Therefore along the downward direction acceleration velocity vertical distance along downward direction all should be taken as negative. तो now vy भी मालूम हो गया हमको, y component of velocity at point d of the trajectory u sin theta minus gt. Now both components vx and vy are mutually perpendicular to each other. Therefore the magnitude of the velocity d at point d of the trajectory is mod v is equal to root under vx square plus vy square, because vx and vy both components are perpendicular to each other. Now the magnitude of velocity v at point d of the trajectory is given by magnitude of v vector, velocity v vector at point p is mod v equals to root under vx square plus vy square. Both components are perpendicular to each other, vx and vy. Now vx is u cos theta ka square, that is u square cos square theta, and vy is, we obtain vy as u sin theta. Vy, y component of velocity at point d is vy u sin theta minus gt, u sin theta माइनस जी टी, और इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर. Now we have root under u square cos square थीटा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में है, तो u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट टर्म का a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में है, इसको a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2u ab है u जी टी साइन थीटा प्लस लास्ट टर्म जी स्क्वायर टी स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर। नाउ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, दैट इज वी हैव यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो केवल यू स्क्वायर इसमें बचेगा माइनस 2u जी टी साइन थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। So this is the magnitude of velocity at point D of the trajectory. This is another equation number 4. We can write it as u square plus g square t square minus 2u gt sin theta also. Now direction of velocity at point D is given by direction of velocity at point D, जो हमको हमारा पर्पस भी वही था, वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, एट एनी इंस्टेंट और एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री क्या वेलोसिटी होगा, कितना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, वही हमको वही वेलोसिटी हमको डिटरमाइन भी करना था। तो डी पॉइंट पर वेलोसिटी टी आफ्टर टाइम टी हमने भी सपोज किया, तो उसका मैग्नीट्यूड मालूम हो गया। अब डायरेक्शन उसका भी वेलोसिटी भी का डी पॉइंट पर एक्स एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन है ये ऑब्टेन करना है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट डी of the trajectory is tan बीटा, यहाँ बीटा एंगल है, डी पर जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का वह एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन है बीटा, तो tan बीटा इक्वल टू, अब यहाँ देखें एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा वी वाई के पैरेलल, यहाँ इसको भी वी वाई इसको ज्वाइन कर दें, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर इस पॉइंट से एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड से इक्वल होता है, तो ये वी वाई है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो ये अपोजिट जो साइड होगा वो भी वी वाई हो जाएगा। अब इस ट्रेंगल में राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल है फॉर्म हो गया, तो tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज वी वाई अपॉन वी एक्स। तो इससे हम डायरेक्शन निकाल पाएंगे। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी tan थीटा इक्वल टू tan बीटा इक्वल टू y component vy upon vx from the figure vy upon vx, where beta is the angle which the velocity direction of velocity v makes with the x axis। d पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल का जो कर्व पाथ है उसके d पॉइंट पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वह x एक्सिस के साथ बीटा एंगल फॉर्म करता है। देयरफॉर tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर vy बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस vx। vy भी ऑब्टेन हमको हो गया है, मालूम है वी वाई इज एलोंग वी वाई इजकल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स भी मालूम है वी एक्स इजकल टू यू कॉस थीटा, वी एक्स इजकल टू यू कॉस थीटा सिंपली, एंड वी वाई इज हेयर। नाउ वी हैव वी एक्स इजकल टू यू कॉस थीटा एंड वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। वी वाई इजकल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू एक्स इजकल टू वी एक्स इजकल टू यू कॉस थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। और ये tan बीटा हो गया, देयरफॉर वी कैन ऑब्टेन बीटा फ्रॉम दिस, बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, साइड चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। देयरफॉर बीटा ही हमको डायरेक्शन मालूम करना था, बीटा एंगल जो वेलोसिटी डी पॉइंट पर ट्रेजेक्ट्री के डी पॉइंट पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वह डी पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्स एक्सिस से एंगल फॉर्म किया है बीटा। देयरफॉर बीटा इजकल टू tan इनवर्स यू साइन थीटा
माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा. This is equation number 6, which is the final equation, which gives the direction of velocity at point d, at any point d of the trajectory. And magnitude of velocity at point d is given by v vector mod is equal to root under u square. u square कॉमन हो गया था, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए इन दोनों टर्म के बदले में मैंने केवल u स्क्वायर लिखा और माइनस 2u जी टी साइन थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो गया एट पॉइंट पी. अब इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच.